Hello guys, how are you? Okay guys, so in this video I explain in English and Hindi my horizontal line and shape trade also. How can we do shape trade? Okay, so if you see here before 2 week, 3 week, 2 week or 3 week, I say if H11 candle close below my this horizontal line that I make. Okay, so we are safe until TP 1836. Okay, you can see here one candle close below that horizontal line, red body without touch, so we are safe 1836 until 1836 TP. But why I ignore this H1 candle until safe the TP? We are safe, but maybe retest going up then going down. This TP we will be reach, gold will be reach the TP, but maybe before some retest. Why? Because if you see here, so I have two line, daily line here. If you see here the previous horizontal line 1911.70, this is the horizontal line. Once H11 daily one candle close below this horizontal line, red body without touch, so we are, our TP is 1811. okay, 1811 we reach, gold will be reach 1811. But you see here this candle is closed, one price is coming from upside to downside and close, red body without touch, one candle, so our TP safe 1811. But you can see one price is coming from upside to downside. Here one candle close below that horizontal line, green body, and also the update horizontal line. I say two line we have 1897, 1911. okay, so you can see yesterday price in this zone we can do scalp. okay, but today the candle on my update horizontal line, you can see 1897, red green going up down, so you can see today also scalping. And the previous horizontal line say us some retest is available upside, then we are going for down. So with, if you are trade on H1, so maybe your first TP 1864 safe, then maybe price is going up, retest that area, then we can do on daily candle once close that horizontal line, so we are safe. So better we are follow here not H1 chart. Many trader now follow H1 chart, so they will be lose. okay, better we are follow big time frame. So big time frame say wait for the safe sell, or if you are sell, so with risk. So I sell but low lot, not too much. okay, and further I put my TP 1838 first safe, and this 0.5 order, then 1817 safe, but I put 1818 for my second TP and 0.3 lot, then I put 0.2 lot for the 1811 TP, but I put 1812, and this one I put for the weekly chart 1785, but I put 87, and this 3 you can see 3, and this 2 I hold for the long, maybe 16 and weekly chart. Weekly chart also I explain next week. okay, now in Hindi. ओके गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि H1 का एक कैंडल क्लोज हो गया विदाउट टच, ग्रीन बॉडी इस हॉरिजॉन्टल के लाइन के नीचे. मैंने बोला था कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे H1 का एक कैंडल क्लोज होगा विदाउट टच, रेड बॉडी, तो हम सेफ होगा 1836 TP तक. लेकिन आप लोग देख सकते हो इधर एक कैंडल क्लोज हो गया रेड बॉडी विदाउट टच, लेकिन मैंने सेफ सिग्नल नहीं दिया. क्यों नहीं दिया मैं एक्सप्लेन करते हैं. कभी कभी बहुत ट्रेडर इसमें गलती करते हैं. आप लोग देख सकते हो कि अभी हमारे पास ये चार्ट H1 में तो हमको सिग्नल मिला 1836 1836 तक जाएगा यह ट्रेड, लेकिन रिस्की है. क्यों रिस्की है कि मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि इधर मेरे पास टू लाइन है. ओके, इधर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, 1911.70 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डेली कैंडल का है. इसके नीचे डेली का एक कैंडल क्लोज होगा तो हमारा सेफ TP होगा 1811 तक. लेकिन आप लोग देख सकते हो कि उसी दौरान हमारे पास दो लाइन है डेली हॉरिजॉन्टल लाइन का, 1897 है, 1911 है. इसके नीचे डेली का एक कैंडल क्लोज होगा तो हमारा सेफ TP होगा 1811. लेकिन कैसे, जब मार्केट ऊपर की तरफ से गिर रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे डेली का एक कैंडल क्लोज हो जाए रेड बॉडी विदाउट टच, तो इसके नीचे जब एक कैंडल क्लोज होगा विदाउट
टच रेड बॉडी, ठीक है। तो हमारा सेफ्टी पे 1811 होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि इधर ये कैंडल इस अपडेट लाइन जो 1897 में है और उस लाइन का यस्टरडे जो कल का दिन था इसके सेंटर में घूम रहा था, प्राइस सेफ नहीं था। लेकिन फिर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो गया तो उसके मुताबिक 1911 का जो प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके मुताबिक रिटेस्ट करेगा, अब फिर जा सकता है सेल। लेकिन H1 हमको सेल का सिग्नल दिए 1836, तो मेरे ख्याल से 1864 अगर हिट कर दिया इसने तो ये वापस ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे गिर के 1836 फर्दर ये डीपी हिट करेगा। लेकिन बेहतर है कि हम डेली टाइम फ्रेम को अभी फॉलो करें, H1 को हम लोग इग्नोर करें, ठीक है, H1 को हम फॉलो ना करें। लेकिन अगर अभी 1897.52 के नीचे डेली कैंडल क्लोज हो गया विदाउट टच रेड बॉडी तो हमारा सेफ टीपी जो है 1836 तक हो सकता है। फिर उसके बाद आप लोग फॉलो कर सकते हो 1811 फर्दर, ठीक है। और 1887 जो H1 है उसके मुताबिक हमको सेल मिला है। तो आप लोगों की मर्जी, रिस्क के साथ सेल करते हो तो कर लो, मैंने तो रिस्क के साथ सेल किया है, ठीक है। और अपना जो 0.05 का लाट लगाया है जो बिग लाट है उसका मैंने फर्स्ट टीपी रखा है 1838, ठीक है। सबका प्रॉफिट ऐसे उठाना है। फिर जब मैंने 0.03 का जो लाट लगाया है उसका मैंने सेकंड टीपी रखा है 1818। फिर मैंने 0.2 का जो लाट लगाया है उसका मैंने टीपी रखा है 1812। फिर मैंने जो 0.01 का लाट लगाया है उसका मैंने टीपी रखा है 1785 वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट का टीपी है। लेकिन उधर के नीचे फिर वीकली क्लोज होगा, उसके नीचे उस हॉरिजॉन्टल लाइन की 1785-86 के, तो फिर हम लोग 1606 तक जाएगा। लेकिन मैंने 1785 रखा है A1 में, ठीक है। जो 1 का लाट है उसमें मैंने 2 का लाट है उसमें 1812 सब में रखा है, 1 में मैंने 1785 रखा है और 2 मैंने छोड़ा है, 2 ऑर्डर 0.01 का, सब मैंने 5 ऑर्डर लिया है, सबका 5 ऑर्डर लिया है। लेकिन मैंने जो 0.01 का है उसका 3 ऑर्डर मैंने 1787 रखा है, वीकली चार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो रखा है, उसको ब्रेक करेगा तो जो 2 मैंने होल्ड किए मैं 1606 पे क्रॉस करेगा और फर्दर इसके साथ में ट्रेड लगाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, आप लोग ये वीडियो पूरा देखो, समझ में आ जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।